Hello everyone, welcome to EduTap. I'm Tanushree and this is another video of our NABARD Grade A to Z series, and in this particular video we are going to discuss something very important, that is the fact that around 70,000, 80,000 people they apply for NABARD grade examination, but out of this huge chunk of people, around 15,000, 20,000 people are there who are actually the serious aspirants for this particular exam. Now, out of these aspirants, again, the number of people who are going to be actually selected, that is very, very small. Now, how can you get an extra edge? How can you make sure that you are above this competition, and how can you maximize your chance of selection? These are few of the points that we are going to discuss in this particular video, and it is especially for those people who have already started their preparation or who have already given an attempt and who are now in this doubt that what they might have done wrong in their previous attempts and who are looking for the avenues to improvise themselves. So these are all the aspects that we are going to discuss in this particular video. Now students, in this particular series we have discussed so many other important topics, so if you want to go and watch those topics, then the link for the entire playlist, it has been given in the description box. Now students, apart from the fact that you want to know how can you get the extra edge, there might be other things you want to know about the NABARD as an organization and NABARD grade A as an examination, be it the syllabus, the decoded syllabus, the previous year questions, the salary of the grade A position. So all of that information, it has been beautifully curated in this particular guidebook, and the download link, the to download this free guidebook, it has been provided in the description box. You can download it from there. Now students, on that note, let us begin our today's session. The first important thing that will provide you an extra edge, it is the self belief. Now you must be thinking कि अगर हमने तैयारी शुरू कर दी है तो सेल्फ बिलीफ तो हमारे अंदर होगा ही. देखिए, जब हम तैयारी शुरू करते हैं ना, हम सबके अंदर सेल्फ बिलीफ होता है, बट व्हेन द रियलिटी हिट्स अस, जब हमसे क्वांट की सेक्शुअल कट ऑफ नहीं क्लियर हो रही होती है, जब हमें एआरडी की चीज़ें समझ नहीं आ रही होती हैं, जब करंट अफेयर्स लर्न नहीं हो रहा होता है, वी ऑल स्टार्ट क्वेश्चनिंग आर सेल्फ, वी ऑल स्टार्ट क्वेश्चनिंग आर डिसीजन टू इवन अपीयर इन दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन, एंड दैट इज़ वेयर द सेल्फ बिलीफ कम्स इन टू पिक्चर. रिमेंबर स्टूडेंट्स, कोई भी ऐसा स्टूडेंट जो अपने ऊपर सेल्फ बिलीफ नहीं करता या जिसको ये डाउट्स बहुत ज़्यादा घेर लेते हैं, आपसे ज़्यादा नुकसान अपनी इस प्रिपरेशन में और कोई भी नहीं कर सकता. एंड लेट मी टेल यू, इट इज़ वेरी वेरी नेचुरल कि आपके दिमाग में ये डाउट्स आएंगे. ठीक है, डाउट्स का आना बिल्कुल नेचुरल है. सवाल ये उठता है कि आप इन डाउट्स के साथ डील कैसे करते हैं. ठीक है, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो आप हो, हम सबके दिमाग में हमारे लाइफ डिसीजंस को लेकर डाउट्स आते ही आते हैं. द क्वेश्चन अराइजेज, हाउ डू यू डील विद देम. जब आपके दिमाग में डाउट्स आते हैं तो क्या आप अपनी कॉपी पेन छोड़ के उठ जाते हो? आप ये सोचते हो क्या तो मुझसे नहीं हो रहा है, चलो इसे छोड़ देती हूँ, कुछ और कर लेती हूँ? क्या आप टाइम पास करने लग जाते हो? अगर आप ऐसा कर रहे हो, देन लेट मी टेल यू, आप अपना बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हो. दिस इज नॉट हाउ यू डील विद दोज मोमेंट्स ऑफ डाउट. इफ यू रियली वॉन्ट टू डील विद इट, यू नीड टू हैव अ पॉजिटिव सेल्फ टॉक. ठीक है, अपने आप से बात करिए, अपने आप को समझाइए कि इट्स ओके, रादर देन लीविंग दैट चेयर एंड नॉट गिविंग द एफर्ट इट रिक्वायर्स. If you are leaving like if you are simply leaving it, it is not going to help you. Rather, be there, put in that effort, and make sure that you get the job done. That is where the self belief, it will be strengthened further. ठीक है, तो ये तो बात होगी सेल्फ बिलीफ की और कैसे आप इसको इंश्योर कर सकते हो. अब दूसरी चीज़ आती है प्रायोरिटाइज. देखिए, आपके पास इस वक्त करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं. एआरडी का पूरा सिलेबस है, इतना सारा करंट अफेयर्स है जो आपको करना है, और अगर आप क्वांट रीजनिंग इंग्लिश में ऑलरेडी वीक हैं तो और ज़्यादा बर्डन बढ़ जाता है. आंसर राइटिंग करनी है, बहुत सी चीज़ें हैं इस वक्त जो आपको अपने एग्जाम के लिए तैयार करनी है. अब सवाल ये उठता है कि इनको प्रायोरिटाइज कैसे किया जाए. अगर आप करेक्ट थिंग्स को करेक्ट टाइम पे प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे हैं, देन अगेन, नो मैटर हाउ मच हार्ड वर्क यू आर पुटिंग, यू आर मेकिंग अ ब्लंडर इन योर लाइफ. ठीक है, तो आपको इस ब्लंडर से बचना है. और अब आप चीज़ों को कैसे प्रायोरिटाइज कर सकते हैं, लेट अस अंडरस्टैंड थ्रू दिस मैट्रिक्स. तो इस मैट्रिक्स के अंदर हमने चार क्वाड्रेंट्स बना लिए. यहाँ पर आपको अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट चीज़ों के बारे में पता चलेगा जो ज़रूरी भी हैं और अभी आपको अर्जेंट बेसिस पे जिनको कंप्लीट करना चाहिए. उसके बाद में कुछ ऐसी चीज़ें जो इम्पॉर्टेंट तो हैं बट बहुत ज़्यादा अर्जेंट नहीं है, इनको आप थोड़ा सा डिले कर सकते हो. देन द थिंग्स विच आर नॉट अर्जेंट, विच आर नॉट इम्पॉर्टेंट, दीज आर द थिंग्स यू कैन कम्प्लीटली लीव. ठीक है, छोड़ के जा सकते हो. उसके बाद में वो चीज़ें जो अर्जेंट हैं, लेकिन जो आपको लगता है कि अर्जेंट है लेकिन जो इम्पॉर्टेंट नहीं है. ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं एक एक करके इन्हें. सबसे पहले वो चीज़ें जो बहुत अर्जेंट और बहुत इंपॉर्टेंट हैं. देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी
ज़रूरी है अपने ARD सिलेबस को कंप्लीट करना, ठीक है। और यहाँ पर भी सिलेक्टेड चैप्टर्स से मेरा मतलब है द 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स एज फार एज द ARD इज कंसर्न। तो इस वक्त अगर आप 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने ARD के 9 चैप्टर्स को कंप्लीट करना। इवन अगर आप 2026 के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपकी जो प्रिपरेशन है वो हमेशा ARD से ही स्टार्ट होनी चाहिए। उसके बाद में आती है बात आंसर राइटिंग स्किल्स की, जो फेज ये इंश्योर करेगा कि आपका नाम मेरिट लिस्ट में आए, इट इज़ द फेज 2, ठीक है। 250 मार्क्स की हमारी फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है और इसमें से 200 मार्क्स का हमारा फेज 2 होता है। और इन 200 मार्क्स में से भी जो 150 मार्क्स होते हैं वो डिस्क्रिप्टिव के होते हैं। तो आप देख सकते हो कि जो फाइनल मेरिट लिस्ट 250 में से बनेगी उसमें से 150 डिपेंड करेगा आपकी आंसर राइटिंग स्किल्स के ऊपर, ठीक है। तो आंसर राइटिंग इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज योर एग्जाम इज कंसर्न। देन इफ यू आर समबडी हु इज वेरी वीक इन क्वांट एंड रीजनिंग, तो यू नीड टू प्रैक्टिस इट, बिकॉज बहुत से स्टूडेंट्स अपनी सेक्शनल कट ऑफ को बहुत लाइटली ले लेते हैं, नॉन मेरिट सेक्शन को बहुत लाइटली ले लेते हैं। प्लीज डोंट कमिट दैट मिस्टेक। इफ यू आर समबडी हु इज वीक और इवन इफ यू हैव स्लाइटेस्ट ऑफ डाउट्स इन योर प्रिपरेशन रिगार्डिंग द नॉन मेरिट सेक्शन, सो प्लीज डू गिव एफर्ट्स टू दीज एरियाज। यहाँ पर मैंने बाकी के जो कंपोनेंट्स हैं नॉन मेरिट सेक्शन के उनको नहीं लिखा है, रीजन बीइंग कि इंग्लिश इज समथिंग जो मोस्टली लोग हैंडल कर लेते हैं, कंप्यूटर नॉलेज, डिसीजन मेकिंग, अगेन दीज आर थिंग्स जो लोग हैंडल कर लेते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जिस एरिया में स्ट्रगल करते हैं दैट इज क्वांट एंड रीजनिंग। अगर ये एरियाज आपके वीक हैं तो इन्हें आपको बहुत ज़्यादा अर्जेंट बेसिस पे करना है। उसके बाद में है करंट अफेयर्स, ठीक है। अगेन चाहे फेज 1 हो, चाहे फेज 2 हो, चाहे ऑब्जेक्टिव पार्ट हो या डिस्क्रिप्टिव पार्ट हो, करंट अफेयर्स हमारे पूरे एग्जाम का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। तो इसलिए अगर आपने करंट अफेयर्स अभी तक पढ़ने स्टार्ट नहीं करे हैं देन प्लीज़ डू स्टार्ट इट नाउ, इट इज़ ऑलरेडी टू लेट। तो आप करंट अफेयर्स को ज़रूर पढ़ना शुरू कर दीजिए। लेकिन अगर आप 2026 साइकिल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो अभी आपको करंट अफेयर्स करने की ज़रूरत नहीं है, यू कैन डिले इट टिल फेब्रवरी और मार्च नेक्स्ट ईयर, ठीक है। तो अगर आप 2025 के लिए प्रिपेयर करें तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल इज़ वेरी अर्जेंट, बट इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग इट फॉर 2026 साइकिल तो अभी आप करंट अफेयर्स को डिले कर सकते हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ द रिविजन, ठीक है। अभी टाइम 2025 साइकिल के लिए बहुत कम रह गया, तो अगर आप केवल चीज़ों को पढ़ते जा रहे हो और रिवाइज नहीं कर रहे हो देन लेट मी टेल यू अगैन इट इज़ गोइंग टू बी अ ब्लंडर। आप चाहे लिमिटेड पढ़ो लेकिन उसको रिवाइज करो, ठीक है। वो चीज़ आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए सो दैट वट एवर एफर्ट यू आर पुटिंग एटलीस्ट उसके कुछ फ्रूट्स तो हो। अगर आप उसको रिवाइज नहीं कर रहे हो, लेट मी टेल यू ARD के अंदर करंट अफेयर्स के अंदर इतना ज़्यादा डेटा है कि आप चीज़ों को नहीं याद कर पाओगे, एग्जाम में अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट ग्रुप ऑफ प्रायोरिटी थिंग्स, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट तो है बट अभी अर्जेंट नहीं है, इनको आप थोड़ा डिले कर सकते हो। इसके अंदर आता है इकोनॉमिक्स का स्टैटिक पार्ट, ठीक है। तो अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जिसको इकोनॉमिक्स की बेसिक नॉलेज है, ठीक है, बेसिक वर्किंग नॉलेज इकोनॉमिक्स की है, जो इकोनॉमिक्स के करंट अफेयर्स समझ लेता है, अगर ये आपका हाल है तो आपको इकोनॉमिक्स को बहुत ज़्यादा रेलेवेंस अभी देने की ज़रूरत नहीं है स्टैटिक पार्ट की, क्योंकि जो हमारा ESI होता है वहाँ पर मेजरली करंट अफेयर्स पूछा जाता है। आउट ऑफ 40 क्वेश्चन अराउंड 35 to 36 क्वेश्चन जो होते हैं वो हमारे करंट अफेयर्स से ही होते हैं, ठीक है। तो अगर आपकी इकोनॉमिक्स ठीक है, आपको चीज़ें समझ आ जाती हैं करंट अफेयर्स वगैरह, तो आपको इकोनॉमिक्स के स्टैटिक पार्ट को बहुत ज़्यादा अर्जेंट बेसिस पे करने की ज़रूरत नहीं है, उसको आप बाद में भी कर सकते हो। उसके बाद में है डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश। देखिए अगर आपने आंसर राइटिंग जो है वो ARD के पार्ट के लिए कर ली है, करंट अफेयर्स के लिए कर ली है, तो डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश अगेन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर जो एसेज आते हैं और अगर आप एसेज के टॉपिक्स देखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा हमारे ARD से रिलेवेंट होते हैं, करंट अफेयर्स से रिलेवेंट होते हैं। तो अगर ये वाली आंसर राइटिंग हो गई है तो इसमें भी काम चल जाएगा और इसको आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस बाद में दे सकते हो, फेज़ 1 के बाद दे सकते हो। अभी के लिए आप इसको थोड़ा डिले कर सकते हो। सिमिलरली जो फेज़ 2 के मॉक टेस्ट है उनको आप अभी फ़िलहाल के लिए डिले कर सकते हो। फेज़ 1 के बाद भी आप फेज़ 2 के मॉक्स जो हैं वो लगा सकते हो। मॉक्स इंपॉर्टेंट है बट फेज़ 2 के मॉक्स जो हैं वो अभी हमारे लिए बहुत ज़्यादा अर्जेंट चीज़ नहीं है। उसके बाद में कुछ ऐसी चीज़ें जो कि ना तो अर्जेंट है और ना ही इंपॉर्टेंट है। कंप्लीशन ऑफ सोशल इश्यूज़ पार्ट, सोशल इश्यूज़ का स्टैटिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो करंट अफेयर बेसिस पे आते हैं। बेसिक टर्मिनोलॉजीज भी अगर आपको पता है मोर देन इंपॉर्टेंट, मोर देन इनफ, ठीक है। उसके बाद में आता है करंट अफेयर्स। अगर आप अप्रैल मंथ से पुराना करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं उसकी ज़रूरत नहीं है।
3 to 5 मंथ्स का करंट अफेयर्स होता है जो कि इंपॉर्टेंट होता है। और अगर हम आज की डेट से 3 to 5 मंथ्स कंप्लीट पीछे जाते हैं, अप्रैल से पीछे का करंट अफेयर्स पढ़ने की यहाँ पर कोई रेलेवेंस नहीं है, ठीक है। उसके बाद में आता है जो हम अपने टाइम पास के लिए इंटरनेट सर्फ करते रहते हैं। अगेन इस चीज़ का आपको खुद पता होगा कि यहाँ पर आप कितना टाइम वेस्ट कर रहे हो। अगर आप अपना स्क्रीन टाइम खोल के देखोगे आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा हाउ मच टाइम यू हैव वेस्टेड ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग। सो प्लीज़ डोंट डू इट, डोंट सर्फ इंटरनेट फॉर लेजर और कंटेंट, ठीक है। पढ़ाई कर लीजिए, अभी वो ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद में कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें लगता है कि अर्जेंट है लेकिन वो अभी इंपॉर्टेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल फ़ोन कॉल्स हो गए, कोई रिलेटिव्स घर पे आ गए, कोई शादी हो गई, फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है, हमें लगता है कि ये बहुत ज़्यादा अर्जेंट काम है या ये हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सी स्टूडेंट्स, लॉन्ग टर्म के अंदर ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, बट राइट नाउ व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सच अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, इस वक्त आपकी प्रायोरिटी जो है वो आपका एग्जाम होना चाहिए, आपके गोल्स होने चाहिए, ना कि ये सारी चीज़ें। दे कैन वेट, दे आर बेसिकली अ काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शन, दे कैन वेट, यू कैन गिव देम टाइम वंस यू क्लियर द एग्जाम और वंस यू आर फ्री फ्रॉम योर फेस टू एग्जाम। फेस टू एक बार हो जाए उसके बाद काफ़ी टाइम मिलता है, आप आराम से अपने फ्रेंड्स से मिल सकते हो। बट फॉर द टाइम बिंग इन सारी चीज़ों से थोड़ा सा मुंह मोड़ लीजिए, ये अभी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद में जो थर्ड थिंग, जो थर्ड ऐसी चीज़ है जो आपको इंश्योर करेगी कि आपके पास वो एक एक्स्ट्रा एज है, दैट इज़ द रिविजन। ट्रस्ट मी स्टूडेंट्स, द नंबर ऑफ पीपल, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आई हैव इंटरेक्टेड विथ थ्रू कैलेंडली कॉल्स, थ्रू द मेंटर्स टॉक सेशन, थ्रू द वन ऑन वन स्ट्रैटेजी कॉल्स, 90% स्टूडेंट्स का डाउट ये होता है कि मैम हमें याद ही नहीं रह रहा है। करंट अफेयर्स कैसे याद करें, बहुत सारा है। एआरडी कैसे याद करें, बहुत सारी है। देखिए, पहली बात ना आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी दैट यू आर targeting a manager, an assistant manager level position in one of the biggest development banks in not one of the but the biggest development banks in our country, ठीक है। आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन को टारगेट करें, दैट इज अ नबार्ड ग्रेड ए ऑफिसर। अगर आप एक ऑफिसर लेवल के एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें तो आपका सिलेबस किसी भी हाल में छोटा तो नहीं होने वाला है। थिंग्स आर गोइंग टू बी बिग, आपको एआरडी पढ़नी ही पड़ेगी, नो मैटर कितनी भी बोरिंग लग रही है, टफ लग रही है, साइंटिफिक नेम्स याद रखने में दिक्कत हो रही है, बट यू हैव टू डू इट। सिमिलरली आपको 3 to 5 मंथ्स का करंट अफेयर्स करना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं स्कीम्स में क्या छोड़ के जा सकती हूँ, मैं रिपोर्ट्स में क्या छोड़ के जा सकती हूँ, नबार्ड एनुअल रिपोर्ट में तो बड़ा सारा डेटा है, हाँ है, और आपको करना भी पड़ेगा। देर इज़ नो शॉर्टकट टू दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू बी वेरी क्लियर कि इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, लेकिन अब इसे कर कैसे सकते हो, ठीक है। मुश्किल तो आपको आ रही है तो फिर अब इसे कर कैसे सकते हैं, इसे करना है रिविजन के थ्रू। जितने ज़्यादा आप रिविजन्स करोगे, जितना ज़्यादा आप चीज़ों को रिवाइज करोगे, सिर्फ यही एक तरीका है इस ओवरवेलमिंग सिलेबस को मैनेज करने का। बार 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 चीज़ों को रिवाइज करो, और यहाँ पर हम 1-1-1 का रूल जो है वो फॉलो करेंगे। जो चीज़ आपने आज एक दिन में पढ़ी है उसको सोने से पहले रिवाइज करो। जो चीज़ आपने एक हफ्ते में पढ़ी है उसको एक दिन लगा के पूरा वीक में जो आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करो। और जो आपने पूरे मंथ में पढ़ा है, ठीक है, एक मंथ में जो आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करो। अगर आप हर एक टॉपिक की इस तरीके से एक डेली, वीकली और मंथली रिवीजन करते हो, ट्रस्ट मी यू आर नॉट गोइंग टू फॉरगेट इट। वो चीज़ें आपको समझ भी आ जाएंगी और याद भी रहने लगेंगी। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ है जो आपने ध्यान में रखनी है कि रिविजन का मतलब जो होता है ना, इट इज़ नॉट री रीडिंग, ठीक है। मोस्टली स्टूडेंट्स रिविजन के नाम पे जो काम करते हैं उसको कहते हैं री रीडिंग। वो रिविजन होता ही नहीं है, वो सिंपली अपनी पीडीएफ खोलते हैं, ऐसे लाइन बाय लाइन पढ़ना शुरू कर देते हैं। दिस इज नॉट रिविजन स्टूडेंट्स, दिस इज री रीडिंग। आप दोबारा उस चीज़ को पढ़ रहे हो, ऐसे तो याद नहीं होगा। अगर आपको सच्ची चीज़ों को याद करना है, यूज़ द टेक्निक ऑफ एक्टिव रिकॉल, ठीक है। अब ये एक्टिव रिकॉल क्या होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपने करंट अफेयर्स के अंदर कोई स्कीम पढ़ी, ठीक है। उस स्कीम के अंदर जैसे कुछ भी उसका नाम है, पीएम विश्वकर्मा स्कीम, ठीक है। पूरी स्कीम दोबारा मत रीड कीजिए, आप सिर्फ हेडिंग पढ़िए और अपने दिमाग को सोचने पे मजबूर कीजिए कि ये लॉन्च ईयर कौन सा था, मिनिस्ट्री कौन सी थी, फंडिंग कितनी थी, एलोकेशन कितनी थी, टारगेटेड बेनिफिशियरीज कौन थे, ठीक है, टाइम पीरियड कितना है, इसके कोई सब स्कीम्स हैं या नहीं है। अगर आप इस तरीके से प्रैक्टिस करते हो, दिस विल फोर्स योर माइंड टू थिंक एंड टू रिकॉल व्हाट इट हैज़ रेड, ठीक है। तो प्लीज़ मेक श्योर कीजिए कि आप एक्टिव रिकॉल से चीज़ों को रिवाइज कर रहे हैं, ना कि री रीडिंग से, ठीक है। और अगेन स्टूडेंट्स, एक और चीज़ रिविजन से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जब पढ़ाई करते हैं ना, दे डू अ पैसिव रीडिंग, ठीक है। अब ये पैसिव रीडिंग क्या होती है? पैसिव रीडिंग का मतलब होता है जैसे हम किसी नॉवल को पढ़ते हैं, जैसे हम टाइम पास के लिए अखबार पढ़ते हैं, दैट इज पैसिव रीडिंग। अगर आप पैसिव रीडिंग के थ्रू चीज़ों को पढ़ रहे हो, आपको वो चीज़ें कभी भी याद नहीं होंगी। इफ़ यू रियली वॉन्ट टू कीप थिंग्स योर मेमोरी, यू हैव टू यूज
एक्टिव रीडिंग। ठीक है, आप एक्टिवली चीज़ों को रीड कीजिए। जो चीज़ पढ़ रहे हो, चाहे इतना छोटा टॉपिक पढ़ रहे हो, पर उसको अपने दिमाग में याद रखो। ठीक है, अगर आप उसको एक्टिवली रीड नहीं कर रहे हो और बस ऐसे कि, क्योंकि ऑफ कोर्स यार इंग्लिश मीडियम में आप लोग पढ़े होंगे या किसी भी मीडियम में पढ़े होंगे, अगर कोई लाइन लिखी है तो आपको पढ़ के समझ तो आ ही जाएगी। सिर्फ उसे समझने के लिए मत पढ़ो, उसको याद करने के लिए पढ़ो। मेक श्योर बार बार उसको पेज पलट के कि क्या वो चीज़ आपको याद है, क्या वो चीज़ आपको याद है। until and unless you are learning it along the way, you are not going to learn it, or you are not going to recall it later on, and it is of course going to be very overwhelming for you। ठीक है, तो इन दो टेक्निक्स का आप डेफिनेटली यूज़ कीजिए, दैट इज एक्टिव रीडिंग एंड एक्टिव रिकॉल। ठीक है, अगर आप इस तरीके से पढ़ाई करेंगे, आई गारंटी यू, ट्रस्ट मी, आई गारंटी यू दैट यू आर रियली गोइंग टू शो द रिजल्ट्स। ठीक है, उसके बाद में जो अगली चीज़ आपने करनी है दैट इज़ मॉक टेस्ट। बहुत से स्टूडेंट्स पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, पर वो कभी टेस्ट नहीं करते कि जो वो पढ़ रहे हैं क्या वो चीज़ें उनको समझ आ रही हैं, क्या वो उनको अप्लाई कर पा रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मॉक टेस्ट की बहुत ज़्यादा अहमियत है। अगर आप चीज़ों को मॉक टेस्ट के थ्रू एनालाइज नहीं कर रहे हो, देन यू आर अगैन डूइंग अ ब्लंडर। अब सवाल ये उठता है कि मॉक टेस्ट देने का राइट टाइम क्या है। तो मॉक टेस्ट देने का राइट टाइम तब है जब आपने 70% ऑफ द सिलेबस जो है अपना कंप्लीट कर लिया हो। ठीक है, इससे कम में अगर आप कर रहे हो तो आप रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे हो। वो तब ज़रूरी है जब आपने कुछ भी नहीं पढ़ा और एग्जाम में 10-15 दिन रह गए, तब आप उस चीज़ को यूज़ कर सकते हो। बट इफ़ यू आर अ सीरियस एस्पिरेंट जो तरीके से अपनी चीज़ों को कवर कर रहा है, तो 70% सिलेबस होने के बाद में आप मॉक टेस्ट देना शुरू कीजिए। उसके बाद में ये आता है कि कितने मॉक टेस्ट देने हैं। तो देखिए, आप फेज़ 1 के लिए एटलीस्ट 10 FLTs ज़रूर लगाइए, और सिमिलरली जो हमारा फेज़ 2 है, फेज़ 2 के लिए भी आप एटलीस्ट 5 FLTs लगाइए। और फेज़ 2 के FLTs जो है वो आपने इस तरीके से लगाने हैं कि आप पेपर 1 पेपर 2 इन दोनों को साथ में बैठ के दे रहे हो, जैसे कि एग्जाम में होता है उस तरीके से। सो दैट इज़ हाउ यू हैव टू गिव द FLTs। उसके बाद में आता है कि अब इन मॉक टेस्ट को एनालाइज किस तरीके से करना है, बिकॉज अनटिल एंड अनलेस यू एनालाइज योर मॉक्स, यू आर नॉट गोइंग टू रिमेंबर एनीथिंग। ठीक है, तो नॉट जस्ट रिमेंबर एनीथिंग, यू आर नॉट गोइंग टू सी एनी इम्प्रोवाइजेशन। देखिए, मॉक्स का जो मेन फंडा है यहाँ पर, या मॉक्स का जो मेन रीज़न है, दैट इज़ कि आप कैसे अपनी स्टडीज़ को और ज़्यादा इफेक्टिव कर सकते हैं और चीज़ों को और ज़्यादा अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप अपने मॉक्स को इफेक्टिवली एनालाइज करें। अब ये एनालाइज आप कैसे कर सकते हो, यहाँ पर सबसे पहले यू हैव टू सी व्हाट आर योर वीकनेसेस। यहाँ पर आपको मार्क्स के साथ कोई दिल लगी नहीं करनी है कि यार मेरे इतने कम नंबर आ गए या मेरे इतने ज़्यादा नंबर आ गए। नो, यू डोंट हैव टू फोकस ऑन मार्क्स एट ऑल, यू हैव टू फोकस ऑन योर वीकनेसेस। गलती कहाँ रह रही है, कहाँ पर हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, और फिर आप उनको इम्प्रोवाइज कीजिए। पहले देखिए कि क्या जो कॉन्सेप्ट्स को याद किया है उनको उनका हम पुअर एप्लीकेशन कर रहे हैं, वो ठीक से समझ नहीं आए, या हम कोई सिली मिस्टेक्स कमिट कर रहे हैं, टाइम मैनेजमेंट में गलती हो रही है, चीज़ें याद नहीं हो रही हैं। तो इन सारी चीज़ों पे ध्यान दीजिए कि आपकी गलती हो कहाँ रही है। ठीक है, उसके बाद में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज़ टू एनालाइज योर गेस। देखिए, हम में से कुछ लोगों के गेसेस बहुत अच्छे होते हैं और कुछ लोगों के गेसेस बहुत बेकार होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मी, अगर मैं अपनी बात करूँ, मेरा गेस वर्क बिल्कुल बेकार है। ठीक है, अगर मैं गेस वर्क से काम करती हूँ, मेरे कभी भी बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स नहीं आते, मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा क्वेश्चन गलत ही होता है। ठीक है, नाउ यू हैव टू एनालाइज कि अगर आप दो ऑप्शंस में से एक ऑप्शन को टिक कर रहे हो, ठीक है, अगर वो सही हो रहा है तो भी आपने देखना है कि इस गेस वर्क के पीछे आपका दिमाग किस तरीके से काम किया था, क्या सोच के आपने इस आंसर को टिक किया था। और अगर वो गलत है तो भी आपने सोचना है कि इसके पीछे क्या कारण रहा कि मेरा ये गेस वर्क गलत रहा। बिकॉज इन द रियल एग्जाम आपको कुछ क्वेश्चंस में गेस वर्क करना पड़ेगा जहाँ पे एटलीस्ट आप दो ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पा रहे हो, और आपको दो ऑप्शंस में से किसी एक पे अगर टिक करना है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस में जनरली स्टूडेंट्स गेस वर्क करते ही करते हैं। सो मॉक टेस्ट इज द बेस्ट वे टू एनालाइज दीज गेसेस एंड टू सी कि आपका गेस वर्क किस तरीके से काम करता है। तो जो अगली चीज़ जिस पर आपने काम करना है, दैट इज़ द मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट के बाद में एक और चीज़ जिसके बारे में ज़्यादा लोग बात नहीं करते, दैट इज़ द स्टैमिना फॉर द डी डे। स्पेशली स्टूडेंट्स फेज़ 2 एग्जाम के अंदर, फेज़ 2 एग्जाम के अंदर आपका 1.5 आवर का पेपर 1 होगा, 2 आवर्स का आपका पेपर 2 होगा, 3.5 आवर्स ऑलमोस्ट आप कंटिन्यूसली जब टाइप कर रहे होगे, जब लिख रहे होगे, दिस रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ स्टेमिना, फिजिकल भी मेंटल भी। टाइप करते करते हाथ थक जाएंगे आपके। सो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू हैव द रिक्वायर्ड स्टेमिना। और अगेन ये स्टेमिना आएगा, वन इज़ द प्रैक्टिस, कि आप एग्जाम लाइक सिचुएशन के अंदर कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करें। एंड सेकेंडली, अगेन बहुत ज़्यादा आपको एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं, बट मेक श्योर दैट यू आर हैविंग हेल्दी डाइट, यू आर डूइंग सम गुड अमाउंट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। ठीक है, थोड़ा बहुत हिलते डुलते रहो, ताकि
जो आपका मेन एग्जाम डे है उसके लिए स्टैमिना बना रहे. ठीक है, सो दीज वर फ्यू ऑफ द थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर यू टू हैव एन एक्स्ट्रा एज as far as the NABARD grade exam is concerned. Now students, I just want to take you to our EduTap website. If you are interested in any of the paid mentorship for your preparation, then you can visit our website edutap.in. Here we have dedicated courses for the NABARD grade A examination. So first of all, we have a 11-hour trial course. In this 11-hour trial course, we provide you the kind of deliverables, we provide you a taste of the deliverables that we are going to offer in our other courses. So you can just have a look at it. It is just for ₹1 and you can test कि हम लोग आपको किस तरीके की चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं. अगर आप हमारे साथ एसोसिएट होना चाहते हो या नहीं होना चाहते हो, तो ये सारी चीज़ें आप इस 11-hour ट्रायल कोर्स में देख सकते हो. उसके बाद में फेज़ 1 और फेज़ 2 की टेस्ट सीरीज़ है. वो स्टूडेंट्स जो केवल फेज़ 2 और इंटरव्यू की प्रिपरेशन में इंटरेस्टेड है, उनके लिए सिल्वर कोर्स अवेलेबल है. एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन preparing for phase 1, phase 2 and interview, then we have a gold course for you. So if you are interested in any of the paid mentorship, you can visit our website edutap.in. Now students, with this we have come to an end of our today's session. So I hope it was helpful for you, and if you have any related doubts, please do let me know in the comment section below. Thank you so much and I wish you all the very best.